Hello student, welcome to online platform of Santosi School. In this video, we will discuss the next part of chapter number 2, class 10th economy. The name of chapter is sectors of economy. In previous video, we will discuss the sectors of Indian economy on the basis of economic activity. Primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is called agriculture sector and its related sector. Secondary sector is called manufacturing sector, industrial sector, and tertiary sector related with the various services. So it is called service sector. Today we discuss this question, how do we count the various goods and services that are produced in each sector. एक सेक्टर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी वैल्यू हम कैसे काउंट करेंगे, बिकॉज डिफरेंट गुड्स आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट लाइक किलोग्राम एंड लीटर. फॉर एग्जांपल जो व्हीट है, राइस है, दे आर काउंटेड इन द किलोग्राम एंड मिल्क इज काउंटेड इन द लीटर्स. So when we added या find the total production of goods and services, we added the monetary value of goods and services, not its number. अर्थात हम goods and services की जो मौद्रिक मूल्य या monetary value है उसको ऐड करें, उनके numbers को ऐड नहीं करेंगे. For example, the quantity of wheat is 500 kg and the value of it is 10 rupees. Then we added the value of 5000 rupees rather than it's the number या quantity of wheat. And final goods and value, when we added calculating the value of goods and services, we added only the value of final goods and services, not the goods value of intermediate goods या raw material. For example, we count the value of biscuit, then we added the only value of biscuit, not the wheat and flour, because फाइनल गुड्स ऑलरेडी एडेड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड. अर्थात जो फाइनल गुड्स है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली ऐड होती है. तो हेंस हेयर वी काउंट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू इज एडेड बिकॉज इट एडेड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. फॉर एग्जाम्पल इन बिस्किट द वैल्यू ऑफ व्हीट एंड फ्लावर ऑलरेडी एडेड. Now the next topic is GDP, gross domestic product. It is a total value of all the final goods and services produced in a boundary of a country, not the abroad, during a accounting year. अर्थात एक कंट्री में उत्पादित होने वाली सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. इन इंडिया द अकाउंटिंग ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1st April to 31st March. So this is called gross domestic product. Again, the total value of final goods and services produced within a boundary of a country in an accounting year is called GDP या gross value added. Now next topic is historical changes in sector. जो इकोनॉमी के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है उसमें क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा सेक्टर किस स्टेज पे इम्पोर्टेंट रहा है. Now the initial stage of development. In the initial stage of development, primary sector was most important and more developed because इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फार्मिंग मेथड एंड इंक्रीजिंग इन एग्रीकल्चर. जब डेवलपमेंट या विकास की जब फर्स्ट स्टेज थी तो प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था और मोर डेवलप था बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड इन फार्मिंग एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ड्यू टू एक्सपांसन ऑफ एग्रीकल्चर इट्स एलाइड. उस समय जो एग्रीकल्चर है या उससे रिलेटेड जो भी एलाइड एक्टिविटी है, पोल्ट्री फार्मिंग है, सेरिकल्चर है, डेयरी है, उनका एक्सपांसन हो रहा था और मोस्ट ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर. डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज थी तो मोस्ट ऑफ पीपल किस में इंगेज थे, एग्रीकल्चर या इट्स एलाइड एक्टिविटी. एंड एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट इन टोटल प्रोडक्शन या GDP. Now the secondary stage of development. In the next stage of development, industrial sector was most important and most developed because due to introduction of new method in manufacturing. अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के नए नए मेथड आ गए थे. एस्टेब्लिशमेंट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज, जगह जगह फैक्ट्रीज एंड जो एस्टेब्लिश हो रही थी उनका एक्सपेंशन हो रहा था. फिर मोस्ट ऑफ पीपल आर वर्क इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क कर रहे थे एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो ग्रेटली कंट्रीब्यूट इन GDP या टोटल प्रोडक्शन. नाउ द
third stage of development, past 100 years या in the third stage of development, the service sector या tertiary sector become more important and more developed. Again same region, most of people work in या engage in activities of tertiary sector, and tertiary या service sector also play great role या shared in total GDP and total production. अर्थात जो GDP में है वो टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन, इसका शेयर इन कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज द हिस्टोरिकल चेंजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. नाउ द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर इन प्रोडक्शन. पिछले कुछ वर्षों में जो टर्सरी सेक्टर है उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है. दे आर मैनी रीजन. द फर्स्ट रीजन इज एक्सपांसन ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग. फिर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ तो उससे रिलेटेड सपोर्टेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउस, उनका भी डेवलपमेंट हुआ. ड्यू टू एक्सपांसन ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, लोगों का इनकम लेवल भी इंक्रीज हुआ. इसलिए पास्ट 100 ईयर में जो टर्सरी सेक्टर या जो सर्विस सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है इंडिया में. नाउ वी टेक इन डिटेल. तो ड्यू टू एक्सपांसन ऑफ बेसिक एंड एसेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, डिफेंस, लॉ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पंचायत समिति या म्यूनसिपलिटी, ये सर्विसेज कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है जिससे टर्सरी सेक्टर का इकोनॉमी में कंटिन्यूस रोल इंक्रीज हो रहा है. फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर या इससे सपोर्टेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज, फाइनेंस, इनमें भी कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है. इसीलिए टर्सरी सेक्टर का जो रोल है इकोनॉमी में कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है. नाउ द इंक्रीज इन इनकम लेवल एंड ग्रोइंग द डिमांड ऑफ लग्जरियस सर्विसेज, लोगों के पास इनकम लेवल बढ़ा तो उनकी जो लग्जरियस सर्विसेज की डिमांड है वह भी बढ़ी, जिससे शॉपिंग मॉल है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, 5 स्टार होटल्स है, टूरिज्म इंडस्ट्री है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वह भी एक्सपांड हुई, जिससे भी सर्विस सेक्टर का जो रोल है इकोनॉमी में कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है. और लास्ट है एक्सपांसन ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एक्सपांसन ऑफ टर्सरी सर्विसेज इन इंडियन इकोनॉमी. Now the next topic is how to create more employment in rural area. हम रूरल एरिया में किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे या जनरेट करेंगे, जो हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है. इम्प्रूव इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गांव है या जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे रोड्स, डैम, ब्रिजेस को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. थ्रू दिस पीपल गेट द एम्प्लॉयमेंट इन विलेज पीपल. फिर एक्सपांसन या प्रोवाइडिंग इजी लर्न टू फार्मर टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फार्मर्स को बैंक के द्वारा इजी लोन प्रोवाइड करेंगे जिससे उनकी फार्मिंग की एक्टिविटी इंक्रीज होगी. फिर प्रमोटिंग रूरल इंडस्ट्री, जो रूरल इंडस्ट्री उसको प्रमोट करके भी हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. फिर एक्सपांडिंग ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज आल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. फिर इम्प्रूविंग रीजनल टूरिज्म, जो रीजनल टूरिज्म या क्षेत्रीय टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करके हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. या फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, फॉर एग्जांपल नरेगा, गवर्नमेंट ने जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम लागू की है उनका अपन प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके भी एम्प्लॉयमेंट को रूरल एरिया में इंक्रीज कर सकते हैं. फिर एक्सपांसन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, फिर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेयर हाउस, स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज. इन मेथड के द्वारा भी हम एम्प्लॉयमेंट को रूरल एरिया में क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट को डेवलप करके और प्रमोटिंग रीजनल क्राफ्ट्स, जो रूरल क्राफ्ट है, रीजनल क्राफ्ट्स है, उसको भी आप प्रमोट करके एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं इन रूरल एरिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नरेगा और नरेगा. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. दिस एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 23 अगस्त 2005 और दिस
Act provided 100 days assured या guarantee employment to people who of rural area who are able to work and need to work. अर्थात ये जो राइट है हमें 100 दिन का एक गारंटी रोजगार प्रोवाइड करता है विलेज एरिया में जो लोग काम करने के लिए एबल है या जिनको काम की आवश्यकता है. This act also provide unemployment allowance. If government fail to provide employment, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, बट वह आपको 100 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा, उन लोगों को देगा जिनका नाम नरेगा की लिस्ट में रजिस्टर्ड है. ड्यू टू दिस फीचर दिस एक्ट इज कॉल्ड राइट टू वर्क. फिर दिस एक्ट स्टार्टेड 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इन 2005 and 6 and now it is expanded in 625 districts of India. Now 2nd October 2009 the name of NREGA is changed. MG NREGA अर्थात 2 अक्टूबर 2009 में इसका नेम चेंज करके MG NREGA मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया. इन दिस एक्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन. अर्थात इस एक्ट में जो महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व है. और दिस एक्ट आल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क because it's provide 100 days guarantee या assured employment. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हमने देखा कि किस प्रकार हम गुड्स की वैल्यू को काउंट करेंगे, किस प्रकार जो आपका है हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और जो टर्शियरी सेक्टर है वह क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है. थैंक यू स्टूडेंट.